যেদিকে তাকাচ্ছি বরফ, পায়ের তলায় বরফ। এসেছি আমরা চন্দনবাড়ি। তবে কি দেখলেই বুঝতে পারছেন বরফের রংটা কিন্তু আর ফ্রেশ হোয়াইটটা নেই। এই ফ্রেশ হোয়াইট থাকে একদম বরফ যখন পড়ে গোটা শীতকাল জুড়ে। খুব আহামরি ঠান্ডা নয়, কারণ রোদ্দুরটা বেশ তীব্র। অনেকক্ষণ বরফ নিয়ে আমরা সবাই এখানে খেলেছি, অপূর্ব সুন্দর। তবে এবার কিন্তু গাড়িতে উঠতে হবে। সব কুছ ওকে স্যার নিকলে খুললে বেশি ধোঁয়া ঢুকবে গো। আর ওইটাই বেশি। আমরা বেরিয়ে এসেছি চন্দনবাড়ি থেকে। এই অপূর্ব রাস্তাটা দিয়ে যাওয়ার সময় গিয়েছিলাম, তখন আপনাদের একটা সাইড দেখিয়েছিলাম, এটা উল্টো সাইড। সত্যিই অপূর্ব। তবে কি এখন পুরো সাদা হয়ে নেই, পাহাড়ের গা দেখুন মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে ব্রাউন কালার। খুব লোভ হচ্ছে যে পুরো যখন শীত পড়ে, পুরো যখন এলাকাটা বরফে ঢাকা থাকে তখন কেমন লাগে। শুনেছি চন্দনবাড়িতে একটা আইস ব্রিজ আছে, ওই অমরনাথ যাত্রা যখন শুরু হয় তখন ওই আইস ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হয়। তো এত বরফ ছিল আমরা এখন ওই আইস ব্রিজ অবধি যেতে পারলাম না। তো ভবিষ্যতে কখনো নিশ্চয়ই আসবো, আবার অবশ্যই তো আসবো, তখন আশা রাখি সেই আইস ব্রিজ দেখাতে পারবো আপনাদের। আর একটা হচ্ছে বেতাব ভ্যালি। এই মুহূর্তে আমরা বেতাব ভ্যালি যাচ্ছি না, কারণ বেতাব ভ্যালিতে একটু নামতে হয়। আর আমাদের আজকে বাকি দুটো জায়গায় বেশ খানিক সময় আমরা কাটিয়েছি এবং ভালো এনজয় করেছি। তো বেতাব ভ্যালিতে যেতে গেলে আমাদের এক্সট্রা পে করতে হবে, যেহেতু আপনাদের বোধহয় একদম শুরুতেই বলেছিলাম যে এখানে কিন্তু সময় বেশি লাগলে এক্সট্রা পে করতে হয়। এবং আমাদের 1 ঘন্টার বেশি সময় আমরা আরু এবং এখানে চন্দনবাড়িতে লাগিয়ে ফেলেছি। তো আইমানের মতো বেতাব ভ্যালি থাক। আর অয়ন্তনেরও শরীরটা একটু খারাপ লাগছে, সবাই এখন আমরা হোটেলে ফিরবো। আপনাদের সাথে দেখা হবে আবার কাল সকালে। গুড মর্নিং। এটা আমাদের জানলা থেকে বাইরের পাহাড়ের ওপর বরফে মাথায় দেখুন হালকা সূর্যের আলো পড়েছে। আর এটা আমাদের সামনের ভিউ, আমাদের মানে জানলা থেকে, কাঁচের ভেতর থেকে অবশ্যই, কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা কিন্তু রাত্রের দিকে শুনলাম প্রায় -2-3 নেমে গেছে। যদিও আমাদের অসুবিধা সেভাবে হয়নি, হিটার ছিল আর সেন্ট্রালি হিটার। তো চলুন যাই হোক, এবার আমাদের কিন্তু বেরিয়ে যেতে হবে। রাস্তায় অপেক্ষা করছে অনেক আকর্ষণীয় কিছু জিনিসের, গাড়িতে উঠে কথা হবে। अच्छा। नंबर 3 हो गया ड्राई फ्रूट मार्केट। अच्छा। ठीक है। नंबर 4 हो गया सैफरन वैली। और देन उसके बाद हम बहुत बढ़िया डील है ये। हम फीडबैक लेकर आए लोकेशन पे, क्योंकि उन्होंने मुझे ही पूछा फोन करके कि आइसलैंड है कहाँ। अगर आपको याद होगा फोन कर रहे थे किसी को कि आइसलैंड कहाँ पे है, तो मैंने उसको बोला ये होटल मेंशन के बगल में है। দেখুন বেরিয়ে পড়েছি আমরা পেহেলগাম থেকে। আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি, পাশ দিয়ে যাচ্ছে লিডার নদী। আপাতত কিছুক্ষণ কিন্তু আমরা আমাদের সঙ্গী হিসাবে এই লিডার নদীকে পাবো। তো চলুন প্রথমেই আমরা যাব, আচ্ছা কোথায় যাব সেটা না হয় গিয়েই আপনাদের বলছি। ব্লগিং করতে গেলে বাইকটা বেস্ট অপশন। শ্রীনগর पे बाइक रेंटल। তুই লাদাখ যাবি কি করে? তুই যদি এইটুকু না হোক, মানে এটা হয় না হয়, লাদাখে তো এর থেকে অনেক বেশি জিগজ্যাগস আছে, আর দেখাও যায়। আমরা তো সিকিমেও গেছি, কি সুন্দর। হ্যাঁ তাহলে लद्दाख में देखो नमकीला टॉप, लामायूरू, उसमें तो बहुत सारे रास्ता खत्म ही नहीं होता। खाता भी नहीं होता रास्ता है। তো যেটা আপনাদের বলেছিলাম, দেখুন চলে এসেছি সান টেম্পল। তো চলুন ভেতরে যাই, তারপরে আপনাদের সাথে ডিটেলে কথা হবে।
কোনারকের সূর্য মন্দিরের কথা তো আপনারা সবাই জানেন। এটা হচ্ছে পেহেলগাম থেকে প্রায় 38 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরেকটি সূর্য মন্দির এবং অত্যন্ত প্রাচীন। তো চলুন জেনে নিই এর সম্পর্কে কিছু কথা। ये लॉर्ड विष्णु के लिए बनाया था इन्होंने। अच्छा। ठीक है? और ये टेम्पल जो है ना, ये लोग समझते हैं, यहाँ के लोग जो समझते हैं वो समझते हैं वो बड़े आदमी आए थे पांडवास, उन्होंने अच्छा, बनाया था। बट अच्छा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये बनाया था इंसानों ने। अच्छा। जैसे पैरामिड ऑफ इजिप्ट बनाया ना, हाँ। नीचे से रेत डाल के एक लेयर, अच्छा। फिर वो क्लियर बंद करके रेत पूरा डाल के दूसरा लेयर, अच्छा। फिर से रेत डाल के तीसरा अच्छा लेयर, वाह वाह रेत डाल के पूरा पूरा टेम्पल बनाया टेम्पल गया। बनाया। लास्ट में सारे रेत को इवैक्यूएट किया, वाह तब जाके टेम्पल बना। এটা একটা আলাদা है ना? अट्रैक्शन। इसमें फिक्सिंग के लिए क्या करते थे, नीचे होल बनाते थे उसमें स्टोन में, हाँ उधर से भी होल बनता था। वही गुस्सा देता स्टोन आता था ना, उसमें ऐसे रखते थे, वो जो होल में फिक्स होता था, फिक्स होता था, आज भी खड़ा है। खड़ा है इसीलिए। हम लोगों का तो सीमेंट का दीवार खड़ा नहीं होता, वो ये आज भी खड़ा है। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो তো কিছুটা তো শুনলেন জুবের আমাদের ড্রাইভার ওর থেকে। তো ও পেহেলগামেই থাকে, আমাদের আজকে নিতে এসেছে। আমরা ফিরবো, তার আগে আমাদের এই সান টেম্পলটা ও দেখালো। তো ওরা আসুক, চলুন আস্তে আস্তে আমরা মন্দিরের দিকে এগোই। যদিও মন্দির ঘোরাবার জন্য আমরা একজন গাইডকে নিয়েছি, এটা বিশাল পুরনো মন্দির, চারপাশে সুন্দর বাগানও আছে। তো চলুন গাইড আসুক, তারপরে ওর থেকেও আমরা কী নতুন ইনফরমেশন পাই অবশ্যই জেনে নেব এবং আপনাদেরকেও জানাবো। আমাদের ভারতে খুব বেশি আমার জানা নেই সূর্য মন্দির কটা আছে কি হিসাব নিকেশ। যতদূর আমি জানি কোনারক আছে, গুজরাটের একটা মন্দির আছে, আর এই কাশ্মীরের সান টেম্পল যেটা মাতান্ড সেটা রয়েছে। তো চলুন গাইড এসে গেছে, কি বলছে আমরা শুনে নিই। আচ্ছা আচ্ছা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যা যেটা মনে হয় ঠিক আছে, हेलो सर हेलो হ্যাঁ স্টার্ট করি। बोलिए। इस टेम्पल को मार्कंड सन टेम्पल कहा जाता है। मार्कंड जो है वो संस्कृत में सूर्य को कहते हैं। अपने इंडिया में 3 एंशिएंट टेम्पल है जो सूर्य के हैं। फर्स्ट है ये जिसे 724 एडी में बनाया गया है, जो कि 8th सेंचुरी का है। অনেক পুরো। सेकंड है कोणार्क मिस्र जो उड़ीसा में है। थर्ड है मोढेरा गुजरात में। इस टेम्पल को राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने बनवाया था, जो 1295 में। और राजा ललितादित्य जो थे वो कारकोटा डायनास्टी के किंग थे सर। और उन्होंने आज से 1400 साल पहले इस मंदिर को सूर्य भगवान को डेडिकेट किया था। और ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ से इस मंदिर की सर एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है तो नजर पड़ती है राइट साइड बनी 3 मूर्ति होती है जो डाउन की ओर बनी हुई है। ये 3 मूर्ति शायद अपने बोर्ड पे भी पड़ा होगा सर। ये 3 मूर्तियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अच्छा। है, जो कि एक पवित्र रिवर माना जाता है। इसमें ये होता है कि मंदिर में एंटर होने से पहले अपने आप को पवित्र करके मेन मंदिर की ओर आते हैं। मेन मंदिर में जैसे हम आते हैं सर, हमारे सामने एक स्टोन मिलती है जिसमें पूरा ऊपर से एक सनफ्लावर का शेप दिया गया है। बैक साइड में जाएंगे अब सूर्य भगवान के हाथ में भी एक ऐसा फ्लावर होगा जिसको सनफ्लावर कहते हैं। और जो मेन टेम्पल है, इस मेन टेम्पल का ऊपर वाला जो टॉप बना हुआ था वो उस टाइम ऐसे ट्रायंगल शेप में बना हुआ था, जो कि ग्रीक आर्किटेक्चर में बना हुआ था। और टेम्पल का जो ईस्ट साइड है वो टेम्पल के बैक साइड की ओर है, और टेम्पल का वेस्ट साइड यहाँ से है। जैसे ही यहाँ सुबह सब सूर्य चढ़ता है, सूर्य की जो पहली किरण है वो टेम्पल के उस होल से अंदर आती है जो यहाँ से उल्टा यू शेप में दिखता है। सूर्य की किरणें मेन टेम्पल में पहुँचने के बाद वो वहाँ पे एक सूर्य भगवान की मूर्ति के ऊपर आ जाती है, और जिस मूर्ति के ऊपर बहुत बड़ा एक क्राउन बना हुआ था, मुकुट पे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है वो सारी सूर्य की किरणें आगे से मेन डोर से रिफ्लेक्ट होती है, सामने वाले कोण तक आ जाती थी। फर्स्ट में जो एक देवी देवताओं का वाहन है, यू नो वाहन, বাহন। फर्स्ट में एक लाइन है जो दुर्गा माँ का एक शेर है। सेकंड में नीचे से देखेंगे तो एलिफेंट है, द गॉड ऑफ आर्ट जिसे कहा जाता है। বিশ্বকর্মা আমাদের। পরে তুলো ছবিটা। थर्ड में आगे चल के क्रोकोडाइल, यमुना रिवर का वाहन होता है। हाँ मकर। लास्ट में गोवर्धन जो माउंटेन को एक उंगली पे लिए। मूर्ति का पोज यहाँ पे साइड पोज है, इसलिए आप साइड पोज से देखेंगे। ये पूरा एक मूर्ति का फेस है, फेस के नीचे यहाँ से ट्रंक जा रहा है जो गणेश जी की मूर्ति। हाँ 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 आइडेंटिफाई हो रही है सर? हाँ। सर को नहीं हो
मूर्ति की ज्यादा पूजा ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में इन्हें विठल जी कहा जाता है। अच्छा, विठल। पांडुरंगा कृष्ण जी का ही रूप है। विष्णु कृष्ण जी विठल जी का जो फेमस चीज रहता है, उनके कानों में जो रिंग रहती है वो फिश की बनी रहती है, मच्छी की। और उनके सर के ऊपर यू शेप में एक टीका देखने को मिलता है। और विठल जी हर जगह आपको स्टैंडिंग पोजीशन में मिलेंगे। वो तिरुपति वाला जी। हाँ, खाली मार्टर सन टेम्पल में बैठी हुई पोजीशन में। শুনলেন তো, সব মিলিয়ে অপূর্ব সুন্দর কিন্তু এই মন্দির, দেখার মতো। অতটা ট্যুরিস্ট কিন্তু আসেও না, কিন্তু আমার মনে হয় অবশ্যই কিন্তু এই মন্দিরটা এসে একবার অন্তত দেখে যাওয়া উচিত। पीड़ा इसलिए कहते थे, उनका राज बहुत पीढ़ियों तक चला था, क्योंकि राजा ललितादित्य के बाद जब वो उनकी डेथ हो गई, फिर आए विक्रमादित्य, फिर आए राजा रैनादित्य, ऐसे उनका राज पीढ़ियों तक चलता। ये ग्रीक है, ये अलग अलग पीसेस जो है नीचे इससे भी छोटे छोटे बने हुए हैं। ओके। और ये जो राउंड शेप में यहाँ से माला बन रही है सेंटर में, इसे गंधारा आर्ट कहते हैं। ग्रीक और गंधारा का यूज কম্বিনেশন করके মানে এটাই এখানে মডেল হিসেবে রাখা আছে ওইটা। बिना है हाथ में। ये सरस्वती की मूर्ति। सरस्वती गर्मी बाहर है, यहाँ आपको ठंडी मिले। अब जितनी गर्मी बाहर बढ़ती है उतनी ठंडी हवा अंदर चलती रहती है। क्योंकि ये जो टेंपल का जो एंट्री है वो वेस्ट फेसिंग है, यहाँ पे ऐसी हवा चलती रहती है। और मेन मंदिर में आते समय जो दो द्वारपाल देखने को मिलते हैं, जय और विजय। জয় বিজয় दो द्वारपाल जो होते हैं विष्णु के। দুজন দুয়ারপাল जय और ये- জয় আর বিজয়। और ये मूर्ति जो है, इस मूर्ति का मंदिर पूरे इंडिया में एक ही जगह पे है, वो है पुष्कर राजस्थान, जिन्हें ब्रह्मा जी कहा जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी के ऊपर 3 फेस देख सकते हैं हम, और बैक साइड में और एक फेस है उस समय का। और यहाँ पे विष्णु की मूर्ति है, जो 4 हाथों वाले विष्णु। और यहाँ पे 2 मूर्तियां हैं। One second, please। छोड़े जा। यहाँ पे 2 मूर्तियां देखने को मिलती है, गंगा यमुना। अच्छा। दोनों के জয় বিজয় ये गंगा जमुना। इन दोनों के नीचे अपना एक वाहन बना है, बैकर बना है। फर्स्ट में एक क्रोकोडाइल बना हुआ है, जिसका एक मुंह आगे से खुला हुआ है, मगरमच्छ। ইতিহাস যদি বাদও দিই, মন্দিরটা দেখতেই অপূর্ব। আর শুনলাম শীতকালে কিন্তু পুরো বরফে ঢাকা থাকে। জানি না কোনো দিন আসার সৌভাগ্য হবে কি না। বরফে ঢাকা মাতান সান টেম্পল দেখার ইচ্ছাটা কিন্তু রয়েই গেল। চলুন এবার আস্তে আস্তে আমরা একটু ছবি তুলে নিই, তারপর বেরিয়ে যাব। আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার পরের এপিসোডে। তো এই এপিসোড কেমন লাগলো জানাবেন, আর সান টেম্পলটা কেমন লাগলো সেটাও জানাবেন। চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন, প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। চেষ্টা করব পরের রবিবার যেন ঠিক এই সময় চলে আসে নেক্সট এপিসোড। প্রত্যেককে ধন্যবাদ।